ملت اسلامیہ کہیں پر دیکھا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کی فلاں پر جگہ پر موت ہو گئی، لیکن میرے آقا کے پیارے دیوانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے چھپ جاؤ، تم کو موت کہیں نہیں چھوڑے گی، اگرچہ تم 7 سالوں میں جا کر کے کیوں نہ چھپ جاؤ، ان کو موت وہاں بھی آ کر کے ڈھونڈ لے گی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نکل رہے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے جا رہے تھے۔ آپ نے چند لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، جو ایک جماعت تھی وہ ہنس میں باتیں کر رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گزر کے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو ہنستے ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اس لیے کہ حضرات گرامی میرے نبی سے جاننے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہے، میرے نبی کو علم غیب کی بھی خبر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت کو اگر یاد کرو گے تو دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ آج انسان موت کو یاد ہی نہیں کر رہا۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ پھرتی دن موت کو 20 مرتبہ یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو میری آپ سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، نویدن ہے کہ آپ ہمہ وقت موت کو یاد کیا کریں، اس لیے کہ الحمدللہ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے اور نماز کی پابندی میں مشغول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی محفل پاک ہوا کرتی تھی اور آپ جب کوئی موت کا ذکر سنتے تھے نا، تو آپ کے جسم سے ان کا خوف دیکھیں کہ آپ کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے تھے، اتنا آپ روتے تھے۔ قربان جاؤ حضرات گرامی، حضرت داؤد کی زندگی پر حضرت داؤد علیہ السلام جب موت کا ذکر سنا کرتے تھے، قیامت کا ذکر سنا کرتے تھے، تو ان کی سانسیں اکھڑ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں اگر محفل پاک سجائی جاتی ہے تو ہم چھٹے مار کر کے روتے ہنستے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، موت کو ہمہ وقت یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر سے کسی کے عزیز کا انتقال ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کی قبر پر جایا کرے، اپنی ماں کی قبر پر جایا کرے، صبح کو نماز پڑھے، نماز پڑھ کے قبرستان جایا کرے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب الحمدللہ ہم اپنے عزیز کی قبر پر جا کر کے فاتحہ خوانی کریں گے تو مرنے والا خود دیکھتا ہے کہ وہ میرا عزیز میری قبر پر آ رہا ہے اور مجھ پر میرے سرہانے کھڑے ہو کر کے میری مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ مرنے والا سب جانتا ہے اور سب دیکھتا ہے، لیکن آج ہم بڑے غافل ہیں ان چیزوں سے۔ اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا تو اس کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ خوانی کیا کریں۔ وقت میں سوٹ کرتے ہوئے اپنی تقریر کو چل رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک نیک صالح انسان کا انتقال ہوا جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، آپ نے دیکھا ہو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں دور و دراز سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جب اس کا نیک صالح کا انتقال ہوا تو مرنے والی کی لوگ تعریفیں بیان کر رہے تھے، بہت تعریفیں کر رہے تھے کہ فلاں انسان نماز پڑھتا تھا، فلاں انسان راستے سے گزرتا تھا، سلام کیا کرتا تھا اور متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ تو جب خوبیاں بیان کر رہے تھے تو اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروز تھے۔ تو جب یہ میرے آقا نے سنا تو میرے آقا نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرات گرامی کچھ دیر کے بعد کسی بدکار انسان کا انتقال ہو جاتا ہے،
जो नमाज का पाबंद नहीं था, बुरे काम किया करता था, उसका इंतकाल हुआ। हजरत गिरामी प्यारे आका भी वहां पर जलवा फरोज थे। लोग उसकी बुराइयां बयान कर रहे थे कि ये शराबी था, जिना करता था, बदकारी था, दूसरों की चुगली किया करता था, गीबत किया करता था। लोग उसकी हजरत गिरामी उसके जनाजे में आकर के बुराइयां बयान कर रहे थे। तो मेरे आका ने उस वक्त भी कह दिया कि वाजिब हो गई। जब ये जुमला हजरत फारूक आजम ने सुना तो हजरत फारूक आजम कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसकी तुम तारीफें बयान कर रहे थे उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब कर दिया, और जिसकी तुम बुराइयां बयान कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दोज़ख को वाजिब कर दिया है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, ऐसा बनो ताकि जब हमारा जनाजा रास्ते से गुजर के जाए तो देखने वाला देख करके मजबूर होकर के कहने पर मजबूर हो जाए, ये किसी दुनियादार का जनाजा नहीं बल्कि आशिक सरकार का जनाजा जा रहा है। 7 मिनट और बर्दाश्त करें, 5 या 7 मिनट, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो रही है। ये आखिरी वाकया है मेरा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो सभी जानते हैं ना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो एक मर्तबा एक के अजीज का इंतकाल हुआ। मौत की महफिल है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी के ताल्लुक से सुनाई जाए। तो जब एक का अजीज का इंतकाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर की दौरे खिलाफत का ज़माना था। दौड़ता हुआ हजरत की बारगाह में जाता है और जाकर के अर्ज करने लगता, हुजूर मेरे अजीज का इंतकाल हो गया है, मेरे प्यारे का इंतकाल हो गया है, आप मेरे अजीज की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चले। बरादरान मिल्लत इस्लामिया गौर करने का मकाम है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे मुबारक पे बैठे हुए थे। जब वो दौड़ता हुआ हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आता है, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने कमरे को बंद किया और बंद करने के बाद में हजरत गिरामी वो कहने लगता कि हुजूर मेरे अजीज की नमाज जनाजा तैयार है, आप जाकर के नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर उसके जनाजे के करीब जाते हैं और जैसे ही जनाजे के करीब गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसे ही नजर उस जनाजे पर पड़ती है तो क्या देखते हैं कि उस जनाजे में जो हजरत गिरामी जो कफन रखा हुआ था, जो मैयत रखी हुई थी, उसके कफन के अंदर कोई चीज थी जो हरकत कर रही थी, जो हरकत कर रही थी, जुम्बिश कर रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसे ही नजर हजरत गिरामी जनाजे पर पड़ती है, आपने अपने कदम मुबारक को पीछे किया और पीछे करने के बाद में हजरत गिरामी हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक छुरी को उठाया और छड़ी को उठाने के बाद में जैसे ही हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उस हजरत गिरामी उसके जनाजे से उसके कफन को हटाना चाहा, जैसे ही आप हजरत गिरामी कफन को हटा रहे थे तो महमूदपुर के गयूर मुसलमानों, हजरत गिरामी जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे, उसकी नमाज जनाजा के वक्त में उसके कफन के अंदर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि उसकी कफन के अंदर सांप मौजूद था। अल्लाहु अकबर कबीरा। सांप मौजूद था। हमें इस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए। लोगों ने देखा, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि सांप, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने छड़ी उठाई और उठाने के बाद में जैसे ही आपने कफन को छाप किया, कफन को हटाया, तो क्या देखते हैं हजरत गिरामी उसके कफन के अंदर एक खतरनाक काला जहरीला सांप मौजूद था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने कदम मुबारक को पीछे हटाया और हटाने के बाद में अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में दराज किया और दराज करने के बाद में दुआ की, ऐ रब्बे कदीर, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कफन के अंदर सांप मौजूद है। हजरत गिरामी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ में फरमाया, या अल्लाह तो इस सांप को बोलने की ताकत अता फरमा ताकि मैं इस सांप से कुछ कलाम करूं, कुछ कलाम करूं, बात करूं। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया और सांप को बोलने की ताकत अता फरमा दी। जब सांप को बोलने की ताकत अता फरमा दी गई, मेरे आका के प्यारे दीवानों जरा गौर फरमाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उस सांप से पूछा, ऐ सांप जरा ये बता कि तू दुनिया में इसके ऊपर क्यों मुसल्लत कर दिया गया? अल्लाह ताला ने तुझे इसके ऊपर नमाज जनाजा के वक्त में किस गुनाह पर, कौन सी गुनाह की बुनियाद पर इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया? तो हजरत गिरामी सांप का जवाब सुनो। सांप कहता है, ऐ खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स के ऊपर इसलिए मुसल्लत किया है कि जब ये दुनिया में हयात था तो ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करता था।
अल्लाह अकबर। नाफरमानी किया करता था, नमाज को नहीं पढ़ता था, जान बूझ करके नमाज को छोड़ता था। नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर मुझ सांप को अल्लाह ताला ने इस शख्स के ऊपर मुसल्लत कर दिया। जरा गौर फरमाएं कि जिसकी दुनिया में नमाज जनाजा के वक्त में उसके कफन में सांप लिपटा हुआ हो तो उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं सरसब्ज़ो सादाब रहूं, खुशहाल रहूं, और जब मैं यहाँ से जाऊं तो जन्नत का हकदार बन करके जाऊं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे आका के प्यारे दीवानों गौर फरमाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा तो पहला उसने 3 सवाल किए थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 3 सवाल किए थे। पहला सवाल, नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उस सांप को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया। दूसरा, गुनाह की वजह ये थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ऐ सांप दूसरी गुनाह की वजह क्या है? तो सांप ज़बानी हाल से कहने लगता है, ऐ खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर, दूसरी गुनाह की वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इसको मालिके, इसको दुनिया में बे इंतहा माल अता फरमाया था, अक्ले सलीम अता फरमाई थी। इसको कमाने के लिए दुनिया में ये बहुत मालदार था, बहुत कमाया करता था, दुनिया में ये बहुत ही मालामाल था, लेकिन दुनिया में मालामाल तो था, लेकिन ये शख्स दुनिया में रहने के बाद में अपने मालों की ज़कात नहीं निकाला करता था। मालों की ज़कात न निकालने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुझ सांप को इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो हज़रात गिरामी, पता चला हमें नमाज की भी पाबंदी करना है। अगर नमाज ही के ताल्लुक से बोला जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो हमें नमाज पढ़ना है, दूसरा हमें अपने मालों की ज़कात निकालना है। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है कि जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते उनका वही माल क़यामत के दिन एक सांप की शक्ल में मुतशक्किल करके उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो सांप कहेगा कि मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिस माल को तुमने दुनिया में अपने ख्वाहिशात नफसानी के लिए जमा कर रखा था। तुम्हारा माल भी सांप की शक्ल में हमारे सामने आएगा और वो हमें डसेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने मालों की ज़कात निकालें। हज़रात गिरामी, खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तीसरा सवाल किया तो हज़रात गिरामी वो सांप कहता है, ऐ खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे इसके ऊपर मुसल्लत किया है, जब ये दुनिया में जिंदा था, जब ये हयात था, रास्ते से निकल के जाया करता था, उलमाए इकराम इसको मिलते थे, आलिम दीन इसको मिलते थे, मस्जिद के इमाम इसको मिलते थे, कारी कुरान इसको मिलते थे, हाफिज साहब इसको मिलते थे, उलमाए इकराम इसको मिलते थे, लेकिन उलमा को देख करके ये अपने चेहरे को फेर लिया करता था। हज़रात मोहतरम, गौर करने का मकाम है। महमूद टूटे गयूर मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग उलमा इकराम को देखकर अपने चेहरे को फेर लेते हैं, हज़रात गिरामी, वो दुनिया में भी ना खुशहाल रहेंगे और कब्र में भी जाकर के तंगो तारीख रहेंगे। तो हज़रात गिरामी, हमें उलमा इकराम से मोहब्बत करना चाहिए, अपने मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, मैं ये अपने घर की बात नहीं बल्कि जिनके मुल्क हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ कि जब वो उलमा का मुखालिफ था, मस्जिद के इमाम का अदब और एहतराम नहीं किया करता था, उनकी ताज़ीम नहीं किया करता था, तो गरीब नवाज अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, लोग उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए, तो जैसे ही कब्रिस्तान उसको दफनाने के लिए करके गए, तो जैसे ही उसको कब्र में रखा, तो आपने देखा होगा अगर कोई मरने वाला होता है तो उसका चेहरा काबे की जानिब होता है ना, सबका चेहरा काबे की तरफ होता है, लेकिन उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं था, बल्कि उसका चेहरा काबे की जानिब से फिरा हुआ था। जब उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए, उसका जनाजा कब्र में रखा, तो लोगों ने हजारों कोशिशें की कि किसी तरह से इसका चेहरा काबे की जानिब को हो जाए, लेकिन उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं हो रहा था। उसी वक्त में गैब से आवाज आती है, गैब से निदा आती है, ऐ लोगों, तुम जितना ही कोशिशें कर लो, हर चंद कोशिशें कर लो, लाख कोशिशें कर लो, ये इसका चेहरा तुम काबे की तरफ नहीं फेर सकते, इसलिए कि जब ये दुनिया में जिंदा था, हयात था, उलमा इकराम इसको मिलते थे, कारी कुरान इसको मिलते थे, मस्जिद के इमाम इसको मिलते थे, उनका अदब नहीं करता था, उनकी तौकीर नहीं करता था, उनकी ताज़ीम नहीं किया करता था।
دنیا میں رہ کر کے یہ علماء اکرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا، لیکن دنیا میں یہ علماء کو دیکھ کر کے اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتا تھا۔ قبر میں میں نے اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی تعظیم کریں، علماء اکرام کا ادب و احترام کریں۔ وقت کافی ہو جائے گا ورنہ الحمدللہ موت کے تعلق سے میں بہت کچھ بتاتا باقی